خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 21ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف دیدمس اور کانے جلیل کا نتانیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا: اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دہنی طرف جا ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا، اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے چوغا کمر سے باندھا، کیونکہ 4 جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 کھاد کا فاصلہ تھا۔ بس یوں ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی، اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا: ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا، یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھی، جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا: آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ عزیز مومنین، آج پاشکا کا 3واں اتوار ہے، اور آج ایک بار پھر پاک انجیل ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن آج مقام جو ہے وہ فرق ہے۔ یسوع پہلے شاگردوں پر اور مریم مجدلی پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہ یہودیہ کا علاقہ ہے، یعنی یروشلم ہے۔ لیکن اب
यसू जलील में अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है। और याद रखें, जब भी यसू जी उठने के बाद शागिर्दों से बातचीत करता है, खवातीन जो औरतें हैं उनसे बातचीत करता है, फरिश्ता भी जब खवातीन से बात करता है, तो बुनियादी हुक्म यह है कि बताओ कि यसू जी उठा है और वो जलील को जाए और वो उसे वहां देखेंगे। और आज वही मकाम है, शागिर्द वापस अपने आबाई गांव आ चुके हैं या आबाई इलाके में हैं, उसी जगह पर है जहां वो पहले भी मछलियां पकड़ते थे। शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस लौट आए हैं। वो सब कुछ भुला देना चाहते हैं जो यरूशलेम में हुआ था। और यीशु आज एक बार फिर उन पर ज़ाहिर होता है। तो जब बार बार अंजील में इस बात का जिक्र किया जाता है कि जलील को जाओ, तो जलील को लौटना दर हकीकत क्या है? जलील को लौटना अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपने बुलावे को याद करना है, उस वक्त को, उस इनकाउंटर को याद करना है जब पहली दफा शागिर्दों ने यीशु को देखा, जब यीशु ने शागिर्दों को कहा कि मेरे पीछे हो लो, और वो अपने बाप को, अपने जालों को, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। लेकिन याद रखें, आज जब यीशु जलील की यानी तबारिया की झील के किनारे जब शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है, तो शागिर्द जालों के साथ हैं, कश्तियों के साथ हैं, और शायद आपके साथ भी हैं। और मुकद्दस पत्रस कहता है कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं, और बाकी शागिर्द जो है वो भी कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो सब कुछ भूलना चाहते हैं कि क्या हुआ था, यरूशलेम में क्या वाकया हुआ, या यीशु के साथ क्या किया गया। वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं, वो ही पेशा इख्तियार करते हैं। लेकिन यीशु एक बार फिर उन पर आज ज़ाहिर होता है। लेकिन आज की पाक इंजील में लिखा है कि जब यीशु उन पर ज़ाहिर होता है, तो लिखा है कि शागिर्द उसे पहचान ना पाए। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे पस मंजर में अब हम एक ऐसे शागिर्द के बारे में जानेंगे या उसकी शख्सियत के बारे में ध्यानो ज्ञान करेंगे, जो अपना नाम तक अंजील में तहरीर नहीं करता। जब भी इस शागिर्द का नाम आया है तो इन्हीं अल्फाज में आया है कि जिसे यीशु प्यार करता था। और आज का हमारा मौजू भी यही है, उस शागिर्द को जिसे यीशु प्यार करता था। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये कौन है, ये कैसा है, इसका खुदावंद के साथ यानी मसीह के साथ, अल मसीह यानी यीशु के साथ ताल्लुक क्या है, इसने वफादारी और मोहब्बत को कैसे निभाया, ये कैसे खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये शागिर्द वफादार है, लेकिन अपना नाम तक तहरीर नहीं करता। यूहन्ना की झील में बार बार इस शागिर्द का जिक्र आया है
कि वो शिगिर्द जिसे यीशु प्यार करता था, लेकिन नाम बयान नहीं किया। लेकिन ऐसी आयत यानी जिसे यीशु प्यार करता है, बाकी अनाजील में यानी मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका की इंजील में इस तरह की आयत मौजूद नहीं। ये सिर्फ यूहन्ना इंजील में जो है वही लिखता है कि वो शिगिर्द जिसे यीशु प्यार करता था। अब हम थोड़ा सा जानें कि ये कौन है जिसे यीशु प्यार करता था, लेकिन मैं इसे फर्क अंदाज से देखूंगा कि वो शिगिर्द जो यीशु को प्यार करता था, और हम देखेंगे कैसे। हालांकि ये बार बार आया है कि वो शिगिर्द जिसे यीशु प्यार करता था, लेकिन अगर फर्क अंदाज से देखा जाए, वो शिगिर्द जो यीशु को प्यार करता था, यीशु तो करता ही है, लेकिन ये शिगिर्द भी यीशु को क्या करता है, बहुत प्यार करता है। लेट अस स्टार्ट। कहां से शुरू हुआ? जब खुदावन ने इन शिगिर्दों को देखा, उनको बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, तो ये शागिर्द अपना सब कुछ छोड़कर, यानी अपने खानदान को, अपने पेशे को, अपने कारोबार को, अपने भाई गांव को या इलाके को, ये छोड़कर सब के सब खुदावन के पीछे हो लेते हैं। लेकिन जब हम पाक हफ्ते की इबादत पर गौर करते हैं और सारी तलावतों को मजमूई तौर पर देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वो शागिर्द जिन्होंने बड़े दावे किए, जिन्होंने सब कुछ कहा कि हम तेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं, जब यीशु गिरफ्तार किया गया तो ये सब के सब छोड़कर भाग गए। और एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है कि सब यीशु को छोड़कर भाग गए। अब वो शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है, वो कहां है, वो किधर है? खुदा का कलाम पाक अंजील में हमें इस बात का इल्म होता है कि ये शागिर्द वफादार रहा, ये शागिर्द खुदावन को आखिरी दम तक प्यार करता रहा। जब से इसने खुदावन को कबूल किया, ये इरादा किया कि वो इस खुदावन, इस उस्ताद की शागिर्दियत में आएगा, उस वक्त से लेकर यीशु की मौत, बल्कि उसके बाद भी ये शागिर्द खुदावन के साथ साथ है। अगर यरूशलेम के वाकयात से पहले देखा जाए तो सारे शागिर्द ही यीशु के साथ हैं, लेकिन जब यीशु यरूशलेम आता है, यानी सलीबी कुर्बानी, जब यीशु अपनी सलीबी कुर्बानी के लिए यरूशलेम में आता है, तो हम देखते हैं कि पहली दफा इस शागिर्द का जिक्र है, लिखा है, और उसके शागिर्दों में से जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि दरियाफ्त कर कि वो किसकी बाबत कहता है। जब यीशु ने कहा कि मुझे तुम में से एक क्या करेगा, पकड़वाएगा, और मुकद्दस पतरस जुर्रत भी नहीं करता सवाल पूछने की कि वो कौन है। वो रिक्वेस्ट करता है इस लाडले शागिर्द से, प्यारे शागिर्द से, कि तू पूछ, मैं नहीं पूछूंगा, तू पूछ कि ये किसकी बाबत कहता है। और याद रखें, ये शागिर्द उस वक्त अपने खुदावन, अपने उस्ताद के सीने के साथ लगा हुआ है। सो इट मीन्स इज वेरी क्लोज टू हिम। अगर यीशु इसे प्यार करता है तो ये भी यीशु को प्यार करता है। अब जब यीशु गिरफ्तार किया जाता है, अदालत के सामने पेश किया जाता है, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस भी है, और मुमकिन तौर पर ये शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है, ये भी वहां साथ साथ है। और उस वक्त होता क्या है कि मुकद्दस पतरस 3 बार अपने उस्ताद का, अपने खुदावन का इनकार करता है।
लेकिन ये शागिर्द जो है वो साथ साथ चलता है। जब सलीब के नीचे शागिर्दों की बात है तो हम देखते हैं कि सारे के सारे शागिर्द जो हैं वो भाग जाते हैं, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन लिखा है कि उस शागिर्द को जिसे यीशु प्यार करता था सलीब के पास खड़े देखा। यानी जब सारे भाग गए, जब सबने खुदावन अपने उस्ताद से बेवफाई की, तो ये शागिर्द सलीब के नीचे मुकद्दसा मरियम के साथ क्या है, खड़ा है। शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता था, या शागिर्द जो यीशु को प्यार करता था। अब जब हम ईस्टर के रोज सुबह का वाकया देखते हैं तो खवातीन आकर शागिर्दों को बताती हैं कि यीशु जी उठा है, और दो शागिर्द जो हैं वो दौड़कर कब्र की जानब बढ़ते हैं, मुकद्दस पतरस और वो दूसरा शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है। और होता क्या है कि दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर क्या किया, यकीन किया। ये बहुत अहम है। दोनों शागिर्द भागे हैं, दोनों शागिर्द दौड़े हैं। ये शागिर्द जो पहले पहुंचा है जिसे यीशु प्यार करता है, इसने जब अंदर जाकर देखा है तो इसने यकीन किया कि दरहकीकत यीशु जी उठा है। मुकद्दस पतरस ने सिर्फ उस वक्त देखा है कि कब्र खाली है, लेकिन ये शागिर्द क्या देखता है और उसके बाद यकीन करता है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि वो इसलिए कब्र पर पहले आया, इट मींस कि ही न्यू कि कब्र, यीशु की कब्र कहां है। अगर उसे मालूम ना होता तो शायद वो किसी दूसरी कब्र पर चला जाता। इसका मतलब है कि जब यीशु को दफनाया गया उस वक्त ये शागिर्द या तो देख रहा था या वहां मौजूद था। इसे इल्म था कि यीशु की कब्र कौन सी है, इसलिए वो भाग कर आया ना, और वो कब्र पर पहुंचा। अब जब यीशु अपने जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर होता है तो एक बार फिर हम देखते हैं कि सब के सब शागिर्द जो हैं वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। एटलीस्ट 6 मुकद्दस पतरस के अलावा। आज की इंजील में लिखा है कि शमौन पतरस और तोमा और जलील का नतानिएल और जब्दी के 2 बेटे और 2 और शागिर्द, मींस के इनमें ये शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है मौजूद नहीं है। अब होता क्या है कि जब यीशु सुबह हुई किनारे पर आ खड़ा हुआ, ये सारे शागिर्द जब उसे देखते हैं तो लिखा है कि शागिर्दों ने उसे ना पहचाना कि ये यीशु है। अगेन they are failed to recognize the risen Lord. यीशु मिलता है, यीशु इनसे बातचीत करता है। हमने जाना कि यरूशलेम में भी यीशु उनसे मिला, उन पर अपने आप को जाहिर किया, बल्कि हुक्म दिया कि तुम जाओ और गुनाहों की मुआफी की मनाती करो, जी उठे यीशु की मनाती करो। लेकिन ऐसे लगता है ये शागिर्द यीशु के उस हुक्म को एक तरफ रखकर अपने अपने इलाकों में या अपने अपने गांव में आ गए हैं और वही काम शुरू कर दिया है जो पहले वो करते थे। माहीगिरी वही मकाम है, काम भी वही है। शागिर्द वापस आ गए हैं और जब यीशु उनके पास आता है फिर भी वो पहचान नहीं पाते। अब देखें, ये शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है उसका किरदार क्या है। लिखा है जब शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है, तब उस शागिर्द ने जिसे यीशु प्यार करता था पतरस से कहा
کہ یہ کون ہے؟ خداوند ہے. یہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیں وہ اپنے گاؤں یعنی اپنے پیشے یا اپنے کاروبار میں پرانی زندگی کی طرف واپس لوٹا ہے. یہ شاگرد ان کے ساتھ نہیں ہے. باقی ہے لیکن یہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے وہاں ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی یہ شاگرد جو ہے ڈاؤٹ کرتے ہیں, یسوع کو پہچان نہیں پاتے یا اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ واقعی زندہ مسیح ہے, تو پھر وہ اس کا کردار جو ہے ایک بار پھر سامنے آتا ہے. ایٹ ونس یہ شاگرد جو ہے نمودار ہوتا ہے. حالانکہ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن لکھا ہے کہ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ جب شاگرد زندہ مسیح کو نہیں پہچان پاتے تو یہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے یہ ان کی مدد کرتا ہے کہ زندہ مسیح کو پہچانو, خدا کی محبت کو پہچانو, اس زندگی کو پہچانو جو کثرت کی زندگی ہے, اس کی طرف بڑھو, اس پر ایمان لاؤ. اور انجیل ویز جو ہے لکھتا ہے کہ جس کی گواہی سچی ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ. یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ اس پیارے شاگرد کی گواہی ہے, اور جس کی گواہی سچی ہے تاکہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ. اور اس نے رسولوں کو بھی ان کی مدد کی کہ وہ زندہ مسیح کو کیا کرے؟ پہچانے, اس پر ایمان لائیں, اس کی گواہی کو قبول کریں کیونکہ اس کی گواہی سچی ہے, تاکہ تم ایمان لاؤ اور ایمان لا کر زندگی پاؤ. مسیح خدا میرے عزیزو, اس سارے جتنی بھی ہم نے ابھی بات چیت کی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاگرد ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ ہے, خداوند کا وفادار ہے, خداوند کو پیار کرتا ہے, خداوند پر ایمان رکھتا ہے, جی اٹھے یسوع کا یقین کرتا ہے, جی اٹھے یسوع کو دوسروں تک پہنچاتا ہے یا انہیں متعارف کراتا ہے. اور لکھا ہے جیسے ہی اس شاگرد نے کہا یعنی مقدس پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے, اور لکھا ہے کہ پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ یہ خداوند ہے, یعنی کس کی آواز سن کر؟ اس پیارے شاگرد کی آواز کو سن کر اس نے کیا کیا؟ جھیل میں کود پڑا. سو اٹ مینس جب اس نے کہا کہ یہ یسوع ہے تو شاگرد بالخصوص مقدس پترس جو ہے اس بات پر ایمان لایا کہ یہ تو خداوند ہے. اب آخر میں چند ایک باتیں. میں حیران تھا کہ اتنا خاص یہ شخص ہے, یہ شاگرد اتنا وفادار ہے, یہ خود بھی وفادار رہتا ہے, دوسروں کو بھی وفاداری کی تلقین کرتا ہے, یہ خود بھی یقین کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی زندہ مسیح کا یقین کریں, اس پر ایمان لائیں. لیکن یہ شاگرد اپنا نام نہیں لکھتا. جب بھی کلام میں آیا ہے تو ایسے ہی آیا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا. اب مسیح میں میرے عزیزو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شاگرد کیوں کر اپنا نام تحریر نہیں کرتا؟ حالانکہ انجیل اس نے لکھی ہے, لیکن یہ شاگرد جو ہے اپنا نام ظاہر نہیں کرتا. آئیں سیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کردار تو بڑا اہم ہے لیکن اس کا نام ظاہر نہ کرنا کیا سکھاتا ہے, یا وہ کیا بتانا چاہتا ہے, یا اپنے ریڈرز کو کیا سکھانا چاہتا ہے جب وہ اپنا نام انجیل میں تحریر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یوحنا انجیل نویس جب اپنے نام کو ظاہر نہیں کرتا یا اپنا نام نک نیم کے طور پر بیان کرتا ہے کہ جسے یسوع پیار کرتا ہے, تو پہلی بات جب وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا محبت ہے جسے یسوع پیار کرتا تھا.
यानी वो बताना चाहता है कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने अपनी मोहब्बत अपने बेटे के जरिए से जाहिर की है, और बेटा जो है बाप की मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है और वो हम सबको प्यार करता है। पहली बात। दूसरी बात, वो जाहिर करना चाहता है अपना नाम ना लिखकर कि वो जिसने उससे मोहब्बत की उसने उसकी सारी जिंदगी बदल डाली है। अब वो ये पहले जैसा शख्स नहीं रहा, ये अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटा। इसने हमेशा अपने खुदावंद से प्यार किया है, उसके साथ वफादारी की है। उसकी जिंदगी को ये मोहब्बत जो है इसने बदल दिया है, यकसर तब्दील कर दिया है। वो अपनी शख्सियत को उजागर नहीं करना चाहता, बल्कि वो खुदावंद को, उसकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत का जो उसने तजर्बा किया है उसको जाहिर करना चाहता है। जब ये शागिर्द ये लिखता है कि वो शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है, तो दर हकीकत वो ये बताना चाहता है कि जो भी खुदावंद के पीछे चलता है, जो भी उसे अपना लेता है, जो भी खुदा की मोहब्बत का गहरा तजर्बा करता है, दर हकीकत वो शागिर्द भी उस शागिर्द की तरह ही कहलाएगा जिसे यीशु प्यार करता है। मतलब यह है कि मैं और आप भी वो शागिर्द बन सकते हैं जिसे यीशु प्यार करता है, लेकिन शर्त वफादारी और मोहब्बत है। हमेशा तक वफादार रहना। वो याद दिलाता है कि हमारा मिशन और हमारी मोहब्बत, जो हमारी खिदमत है, वो खुदा की मोहब्बत का प्रचार है। और एक शागिर्द जो है वो इसलिए बुलाया गया है ताकि वो खुदावंद की मोहब्बत को दूसरों पर जाहिर करे। वो अपने आप पर तवज्जो नहीं दिलाना चाहता, बल्कि अपने आप से तवज्जो हटाकर, यानी खुद की बजाय वो यीशु, उसकी मोहब्बत, अंजील की मनाती, जिंदा मसीह का प्रचार जो है उस पर तवज्जो दिलाना चाहता है। इसलिए वो अपना नाम जाहिर नहीं करता। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, वो शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है। नतीजे के तौर पर चंद एक बातें और बहुत ही गौर तलब। वो शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है। मैं समझता हूं कि ये गुमनाम शागिर्द, जिसका नाम अंजील में बयान नहीं किया गया, ये शागिर्द दर हकीकत हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। और वो पैगाम क्या है? दर हकीकत दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहता है कि अगर जिंदगी में आपसे, यानी एक शागिर्द से कोई सवाल करता है, कोई ये पूछता है कि तू कौन है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? और मैं समझता हूं कि यही हमारे पैगाम का मरकज है कि जब एक शागिर्द से कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा शख्स सवाल करता है, पूछता है कि तू कौन है, तो मेरा या उस शागिर्द का जवाब क्या होना चाहिए? आम हालात में जब कोई ये पूछता है कि तू कौन है, तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, अपना खानदान बताते हैं, अपना पेशा बताते हैं, अपना इलाका जो है वो बताते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। करना भी चाहिए, अच्छी बात है। जब कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं, तो हम नाम बताते हैं कि मेरा नाम फलां है, मेरा रुतबा ये है, मेरा पेशा ये है, मेरा खानदान ये है, मेरा घर ये है, मेरा इलाका ये है। अच्छी बात है, लेकिन शागिर्द फर्क चीज बताना चाहता है। वो कहता है कि हाँ ये जरूरी है, आप बता सकते हैं, लेकिन एक यीशु के शागिर्द से जब कोई ये सवाल पूछता है कि तू कौन है, तो एक शागिर्द का जवाब क्या होना चाहिए? उस शागिर्द का जवाब बहुत सादा लेकिन पावरफुल है। तू कौन है? शागिर्द का जवाब होना चाहिए, मैं वो हूं
या मैं वो शख्स हूं जिसे यीशु प्यार करता है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? कई दफा हम ऐसा नहीं करते। जब हमसे कोई सवाल करता है कि तू कौन है, हम अपना नाम बताते हैं, लेकिन शायद ये कभी भी नहीं बताया। जब हमसे कोई पूछता है कि तू कौन है, हमने कभी नहीं बताया होगा कि मैं वो हूं जिसे यीशु क्या करता है? प्यार करता है, जिसे यीशु अजीज जानता है, जिसके लिए यीशु ने अपनी जान कुर्बान दी। ये वही यीशु है जो जिंदा हुआ और जो मुझे जिंदगी देता है। मैं वो शख्स हूं जिसे यीशु प्यार करता है। मसीह में मेरे अजीजों, एक शागिर्द की शनाख्त उसका नाम नहीं, उसका मकाम नहीं, उसका रुतबा नहीं, उसका खानदान नहीं, उसका पेशा नहीं, उसका इलाका नहीं। एक ईमानदार की पहचान क्या है? कि मुझे यीशु प्यार करता है। और ये लफ्ज कौन कह सकता है जिसने जाती तौर पर तजर्बा किया है? और आप जानते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जब आखिरी खाने का वक्त था तो ये शागिर्द अपने उस्ताद, अपने खुदावंद के सीने के साथ जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। सो इट मींस ही एक्सपीरियंस हिज लव, यानी एक तल्लुक की बात है। जब उसने तजर्बा किया कि वाकई सच में ये खुदावंद मुझे प्यार करता है। ऐसे नहीं, इसने तो प्यार की इंतहा कर दी है। और वो प्यार की इंतहा क्या है? कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है प्यार। उस शागिर्द ने ये पहचान लिया कि मेरा खुदावंद मुझे प्यार करता है, मेरा खुदावंद मुझे अजीज जानता है, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, मेरा खुदावंद मेरे लिए मरता है। इससे ज्यादा कौन प्यार करता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे? वो शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है, तो अब उसके लिए कोई और पहचान रह ही नहीं गई। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है जब अपनी जिंदगी का जायजा लेता है, जब वो अपनी खिदमत का जायजा लेता है, जब वो अपने पूरी क्या कहते हैं, जितना भी उसकी खिदमत है या जितना भी शागिर्दों के साथ तल्लुक है उसका जायजा लेता है, तो उसके ज़हन में एक ही चीज आती है कि खुदावंद मुझे प्यार करता है। शागिर्द जिसे यीशु प्यार करता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसलिए जरूर है सबसे पहले कि हम भी इस शागिर्द यानी यूहन्ना रसूल की तरह खुदा की मोहब्बत का जाती तौर पर तजर्बा करें सबसे पहले। और जब हम ये जान लेंगे, तजर्बा कर लेंगे, तो जब हमसे कोई पूछेगा कि तू कौन है, तो हमारा जवाब होगा कि मैं वो हूं जिसे यीशु प्यार करता है। मेरा सवाल यह है कि जब कोई आपसे कभी सवाल करता है कि तू कौन है, क्या कभी हमने कहा कि मुझे खुदावंद प्यार करता है, या मैं खुदावंद को अजीज हूं, या खुदावंद ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, वो जिंदा खुदावंद है, खुदावंद मुझे बहुत अजीज जानता है, बहुत प्यार करता है? अगर ऐसा तजर्बा हुआ है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ, तो जब कोई आपसे पूछे कि तू कौन है, तो आप जरूर बताएं कि मैं वो हूं जिसे यीशु प्यार करता है। और सच में यीशु आप में से हर एक शख्स को प्यार करता है। बात पहचानने की है, बात जानने की है, बात शख्सी तौर पर तजर्बा करने की है। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।